Okay, good morning students. Today we are going to discuss the remaining part of APC, MPC, APS and NPS. As you know, in our last video we have discussed about APS and APC and NPC, and today we are going to discuss about APS and MPS. First, I would like to know what is APS. As you know, APS is known as average propensity to save. So question is, what is APS? Average propensity to save. Basically, average propensity to save or APS refers to the saving corresponding to the total income. So APS means APS equal to क्या होता है? APS का जो फार्मूला होता है वो होता है APS बराबर S upon Y, where S is saving and Y is national income or total income. You can say total income. So APS बराबर S upon Y. Now we take an example. With help of that example, we would like to understand how we calculate saving. As given, income is 0, 100, 200, 300, 400 and 500. Consumption is what? 40, 120, 200, 280, 360 and 440. Students, here saving is not given. जब सेविंग नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे? सेविंग निकाल लेंगे। और सेविंग निकालेंगे कैसे? इफ वाई एंड सी आर गिवन, इनकम एंड कंजप्शन आर गिवन, देन वी हैव टू कैलकुलेट सेविंग एंड वी नो द फार्मूला इज y बराबर c प्लस s. इफ y बराबर c प्लस s, then with help of that formula we can calculate s will be what? S equal to y upon c. So by this formula we can calculate saving. So when y is 0, c is 40, then y minus c, 0 minus 40, that is minus 40. So the saving will be minus 40, minus 20, 0, 20, 40 and 60. And now we calculate APS. APS इक्वल क्या होता है? S upon y. तो जब हम AP इक्वल टू S upon y करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? देखिए माइनस 20 अपॉन 100, और जब माइनस 20 अपॉन 100 करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस 0.20. अगेन इट विल बी 0. उसके बाद जब हम 20 अपॉन 300 करेंगे, क्योंकि S 20 है और इनकम हमारा है, तो हो जाएगा 0.067. उसके बाद 40 अपॉन 400 0.10 and 60 upon 500, that is 0.12. So that is how we calculate the APS. We will discuss some important points of the APS. If we see that schedule, with help of that schedule we can determine some important characteristics of APS. First, students, if you see the value of APS, then you can see here that the first important characteristics of APS, that the value of APC never will be 1 or more than 1. APS की जो वैल्यू है कभी भी वो एक या एक से अधिक नहीं हो सकती है. एवरी टाइम इट विल बी बिटवीन 0 to 1. इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में हो सकती है. यहाँ पे आप देखिए दूसरा क्या है? APC में भी 0. ध्यान रखिएगा जो हमारा APS है वो APS क्या है? APS 0 हो सकता है, APS नेगेटिव भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि अब प्रश्न उठता है APS नेगेटिव क्यों हो सकता है? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन इज आल्सो नोन एज नेगेटिव सेविंग. तो इन दैट केस APS 0 हो सकता है, APS माइनस हो सकता है, और APC की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच रहती है. और उसके बाद जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता जाता है, as our income increase, APS also increase. So that is all about APS. Now the second important thing about which we are going to discuss, that is MPS. MPS is what? MPS is marginal propensity to save. MPS equal to delta S upon delta Y. What is delta S? Delta S is change in saving and delta Y is change in total income.
So we can say that the marginal propensity to save refers to the total change in saving corresponding to the change in total income. So here delta S upon delta Y. Delta S is what? Change in saving. Delta Y change in income. Now with help of the same formula which we used in the APS, now we use in calculation of the MPS. So example is again same. Y equal to 0, 100, 200, 300, 400. C equal to 40, 120, 200, 280, 360. अब देखिए हमें सिर्फ y और c दिया गया है, y और c की हेल्प से हम s निकालेंगे। अगेन वी यूज सेम फार्मूला, y बराबर c प्लस s, तो s बराबर y माइनस c। जब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो 0 माइनस 40 दैट इज माइनस 40, 100 माइनस 120 दैट इज माइनस 20, फिर 0, फिर 20 एंड देन 40। अब जब हम डेल्टा एस निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट डॉट हो जाएगा, और उसके बाद जब डेल्टा एस निकालेंगे, डेल्टा एस क्या है, चेंज इन सेविंग। बच्चों यहाँ आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि फिर कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत होती है। डेल्टा एस कैसे निकालेंगे भाई, देखो डेल्टा एस क्या है, पहले हमारा डेल्टा एस कितना था, 40 था, माइनस 40, अब कितना हुआ माइनस 20। तो इसमें चेंज कितने का आया, आप इसको ये सोचिए ना, आपके पास 20 रुपए कर्ज थे, 40 रुपए कर्ज था, अभी आपके पास 20 रुपए बच रहा है। इसका मतलब क्या कि आपने 20 रुपए दिए किसी को, जब 20 रुपए किसी को दिए जिससे आपने कर्ज लिया, जब उसको 20 रुपए दे दिया तो आपके पास रिमेन 20 रुपये बचा, यानी 20 रुपये का परिवर्तन हुआ, तो चेंज, तो ये कितना हो जाएगा 20। अब बात करेंगे 0 माइनस माइनस 20, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 20 नहीं 20। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो वहां डेल्टा कितना गया 20 20 20, सेविंग इज कांस्टेंट। इनकम क्या हो जाएगा, 0 था 100 हुआ, 100 का ग्रोथ हुआ, 100 से 200 हुआ 100 का, तो ये हुआ। इसकी मदद से जब हम एमपीएस निकालते हैं तो हमारा जो एमपीएस का फार्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो 20 अपॉन 100 होगा, 20 अपॉन 100 होगा तो 20, फिर 20 अपॉन 100 20, तो हमारा ये जो वैल्यू है ये कितना होगा, माइनस सॉरी 0.20 होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट एम्पियर। वन थिंग, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सम रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। So first we would like to determine the relationship between APC and APS. APS तो APC और APC और APS के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसमें पहला रिलेशनशिप है the important is APC plus APS equal to 1, यानी किसी भी दशा में अगर हम APC और APS को ऐड करें तो उसकी वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, इसका बेटा एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, जब आपके पास 10 रुपए हैं और उस 10 रुपए में से आपने जो है 5 रुपए या 6 रुपए के समोसे खा लिए। भाई जब 6 रुपए के समोसे खा लिए, नहीं 6 रुपए क्या हुआ, कंजप्शन हुआ। अब प्रश्न उठता है कंजप्शन हुआ क्यों, भाई कंजप्शन जो पैसा हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए खर्च करते हैं वो कंजप्शन होता है। तो आपको समोसे खाने थे, आपकी नीड थी, आपने उस पर खर्च कर दिए। जब 6 रुपए आपने समोसे पर खर्च कर दिए, आपके पास 10 रुपए था, तो बचा कितना 4, तो जो बचा वही क्या है, वही सेविंग है। और जब 6 और 4 को जोड़ोगे तो कभी भी वह 10 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि APC, the value of APC and APS never will be more than 1, it is always and every time APC plus APS equal to 1 होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास APC बराबर 0.4 है, तो APS कितना होगा, ऑब्वियसली विथ हेल्प ऑफ दैट फार्मूला APS इक्वल टू 1 माइनस APC एंड 1 माइनस APC, APC इज गिवन 0.4, तो हमारा APS कितना हो जाएगा, APC हो जाएगा हमारा APC हो जाए, APC निकालेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो अब प्रूव करना है, इफ someone says that the prove APC plus APS equal to 1, तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे बेटा। अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, APC बराबर क्या होता है C अपॉन Y, APS बराबर क्या होता है S अपॉन Y।
हम उसी फार्मूले का यहाँ प्रयोग करेंगे। अब एपीसी की जगह पे आप एपीसी का फार्मूला लिख दीजिए। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एपीसी की जगह पे इसका जो फार्मूला है सी अपॉन वाई लिखा प्लस एस अपॉन वाई एपीएस और वाई। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो y चूंकि डिनोमिनेटर है, हर है, तो ये ऐड नहीं होता है, और c प्लस एस ऐड हो गया तो c प्लस ऐड हुआ। अब देखिए क्योंकि हम जानते हैं y बराबर क्या होता है c प्लस एस, जब y बराबर c प्लस एस होता है तो ये c प्लस एस हम y लिख सकते हैं, तो y अपॉन y दैट इज 1। सो लेट्स प्रूफ। इसी तरीके से अब हम एमपी, तो दूसरा हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो होता है एमपीसी प्लस एमपीएस। एमपीसी एंड एमपीएस इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। जैसे एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है, उसी तरीके से किसी भी दशा में प्रत्येक स्थिति में एपीसी और एपीएस की जो वैल्यू है, एपीसी और एपीएस की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकती, उसी तरीके से हमारा एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। एमपीसी बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और जो एमपीएस है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो ये क्या हो गया डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1। फिर अगेन डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस अपॉन वाई इसको लिख सकते हैं, और डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस बराबर क्या होता है डेल्टा वाई होता है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू 1। सो ऐसे इस तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अब बेटा एक चीज आपको यहाँ ध्यान देना है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो एमपीसी होता है हमेशा एमपीसी ऑफ द पुअर पीपल इज ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ द रिच पीपल्स। जो गरीब लोग होते हैं उनका जो एमपीसी होता है वो अमीर लोगों के एमपीसी से अधिक होता है। वैसे ही जो पुअर कंट्रीज होती हैं उनका जो एमपीसी होता है इट इज ग्रेटर देन रिचर कंट्रीज। क्यों? क्योंकि देखिए एमपीसी क्या है, डेल्टा सी, एमपीसी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजप्शन विद करस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन इनकम। तो भाई देखिए क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं उनकी इनकम उस रेशियो में नहीं बढ़ती है जिस रेशियो में उनके कंजप्शंस होते हैं, जबकि जो रिच कंट्रीज होती हैं, रिच पीपल्स होते हैं, उनकी जो इनकम होती है चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन चेंज इन कंजप्शन। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड द MPC of the poor people is greater than MPC of the richer people. Same with the MPC of the poor country is greater than MPC of the richer country. Students, now we do some another very important topic, that is investment function. That is investment function. अच्छा ये बताइए आपको APC और APS, MPS एंड MPC समझ में आया? अच्छा तो APC प्लस APS क्या होता है 1 होता है ना। अच्छा ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन रिफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। फॉर एग्जांपल मशीनरी, बिल्डिंग्स, मटेरियल। ये जो हाउस होल्ड होते हैं, ये जो बिजनेसमैन होते हैं, इनके द्वारा प्रॉफिट मोटिव उद्देश्य से जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोलते हैं। उसके जैसे मशीनरी को खरीदने में, रॉ मटेरियल को खरीदने में, इक्विपमेंट को खरीदने में, इसमें सब में हम करते हैं। तो इसी को, इसका जो मोटिव होता है उसका होता है प्रॉफिट होता है। जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है वो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ध्यान सुन लीजिएगा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमारा होता है, अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट। देखिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड। मतलब क्या? मतलब ये कि जो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है ये सीधे हमारी इनकम से प्रभावित होता है। इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम देयर विल बी इंक्रीज इन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अब प्रश्न होता है भाई इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है क्या? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट व्हिच इज मेड फॉर प्रॉफिट मोटिव। इट इज मेड फॉर
प्रॉफिट मोटिव एज देयर इज इंक्रीज इन इनकम, हमारा जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो भी हम बढ़ा देते हैं। कैसे भाई, देखिए सपोज कर लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, अभी आपके पास एक फैक्ट्री है, अब आप सोचते हो फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट you want to establish new factory, because in that first business you are earning more and more income, so generate some another income. You want to establish new organization, for the establishment of new organization you are required to purchase machinery, plant, equipment, raw material, etc. So that is known as induced investment. इसका क्या देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस को हम इनकम से डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट हो गया। सपोज कर लीजिए हमारा ये एक्सिस है, तो अभी हमारा जो करंट में इन्वेस्टमेंट है वो है A1, A2। अब हमारी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ के हमारी क्या हो गई A3। अब हम क्या करेंगे, तो हम और अपने जो मशीनरी है उसको हम परचेज करना चाहेंगे, ये क्या हो गया A4। तो ये होता है हमारा, इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सो विथ हेल्प ऑफ दैट ग्राफ यू कैन सी दैट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम। किससे रिलेटेड होता है, इनकम से, है ना। जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इंड्यूस्ड इनकम भी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। Another very important investment, the second type of investment is that is autonomous investment. Autonomous investment. Students, please be very careful to know something about autonomous investment. First and very important thing about the autonomous investment is that it is unaffected by the income. इसका मतलब क्या है कि जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है उसका हमारी इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, नहीं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। ये जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है, पहली चीज तो ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। ये इनकम बढ़े या कम हो नॉर्मली उससे प्रभावित नहीं होता है। इट इज मेड बाय गवर्नमेंट। किस पर्पज के लिए, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए बहुत तरीके की इन्वेस्टमेंट करती है। इनकम बढ़े या ना बढ़े इसके बावजूद उसको उस पर इन्वेस्टमेंट करना होता है। क्यों? अच्छा, दूसरी बात यह कि जो हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए बनाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो चेंजेस होते हैं, ये जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का जो सिनारियो है, इट इज डिपेंड अपॉन द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ एनी country. If there is change in technology, upgradation of technology, then it influence the autonomous investment. इसका ग्राफ कैसे होगा, लेट ये हमारा फिर इट इज अगेन x axis shows income, y axis show investment. लेट जब हमारा ये A1 इनिशियल स्टेज हमारा A1 और A2 इन्वेस्टमेंट है, चूंकि इन्वेस्टमेंट का इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये इस तरीके से बढ़ता जाता है। हियर इन्वेस्टमेंट इज रिमेन कांस्टेंट, एक तरीके से कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको कि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। इसका गवर्नमेंट का उद्देश्य ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, ये सोशल वेलफेयर अर्निंग होता है। और हाँ, इस पर ऑटोनॉमस कंडीशन पे असर जरूर पड़ता है पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस का। अगर पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस हो रहे हैं तो उसका हमारे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा तो स्वाभाविक रूप से ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द APS, APC, MPS, MPC relationship, their important points and investment function. I hope you will enjoy this video, but as I every time say, if you have any problem, please give your valuable suggestion to improve in further video. Okay, thank you students.